everyone, welcome to BU Care Health Talk and welcome to Brilliance a new platform. Today we are here for a special health talk on the topic Action in Crisis in COVID-19 pandemic. And to present this talk and to anchor the session, we have a celebrity guest with us, a celebrity anchor who is a Bollywood and Hollywood anchor. She has hosted a number of shows ranging from IFA to the top fashion shows in the country, worked as a yoga enthusiast and empower around 2 million people around the globe. I would like to welcome Miss Himmat Ahuja. Welcome, ma'am. Thank you very much, Jazz. That's extremely kind of you for the lovely introduction. And I welcome all our lovely viewers today. We're all talking about the real wealth today, which is the time to make you realize that it's always health, which is truly, and I'm really honored to be taking on this session which says actions for crisis in COVID-19 pandemic. And I take this opportunity of thanking Mr. Himanshu for this wondrous honor. Absolutely my pleasure to be here as a part of the MBA since I'm a doctorate in nature pure, also qualified MBA in finance. It's absolutely my pleasure to be here with us as far as health and fitness is concerned. So please allow me to introduce to you BU Care, which has organized this wondrous event. BU Care is an international doctors community which is spread across 10 countries worldwide for healthcare awareness and consultancy. They do online consultation, live webinars, conferences, and workshops which are related to articles and magazines. They also provide membership for doctors and healthcare professionals according to different credentials. This digital platform is designed to support motivational life talks, innovative ideas, and life-changing strategies. It's regarding all kinds of diseases, prevention and cure, provide guidance and solutions through experts of respective domains in medical healthcare. Absolutely my honor once again to be here on behalf of BU Care, and we have with us two of the very renowned professionals from the health and fitness sector. And it's absolutely my honor to welcome both of them here, my dear lovely friends. Our guest speakers for today are Dr. Rajashree Singh and Dr. Kajal Pali. So before we request them to speak a few words, I'm going to definitely introduce these very renowned speakers who excel in their field of that fitness and are here to spread awareness amidst the masses. So I'm going to take this opportunity of asking Jess, we go ahead with Dr. Rajashree first or Dr. Kajal, please? Yeah, we can start with Dr. Rajashree first, and Dr. Kajal will be joining us very soon. Wondrous, wondrous, perfect. So to my lovely people out here, we have with us the very renowned Dr. Rajashree Singh. And before I go ahead and have a few words about Dr. Rajashree Singh, who's extremely renowned in the world of Ayurvedic. She's an Ayurvedic consultant with expertise in chronic diseases with Panchakarma, weight management, fitness guru Ayurvedic dietary, a degree in 2000 at the Guru Ayurvedic Medical College and Hospital, Mukhtar, Punjab, with an experience of 14 years. She's been practicing at Ayurvedic Wellness Clinic, which is in Mumbai and Thane, also provides free online consultations. We are truly delighted to welcome Dr. Rajashree Singh. How are you doing today, Dr. Rajashree? I'm pretty much fine, Simran. How are you? It's been so pleasure that I'm sitting in front of you and discussing about COVID pandemic. As doubt, everybody is just pissed off what to do, what not to do. So, Brilliance in You has given me a platform where I can help people, even worldwide, if they are listening to us, that will be very good for us. Thank you, Dr. Rajashree, and I'm so delighted to have a conversation with My pleasure is all mine. And Dr. Rajashree, आजकल के ज़माने में, हमेशा There's the past 6 months, मैं आप सभी से request करना चाहूँगी, everyone else except Dr. Rajashree, please switch off your audio, put your audio on mute. अपने audios आप please mute पे रख दीजिए सभी लोग, everybody, please, it's a request. Yeah, can you see me, Dr. Rajashree? Very well. Sure. Thank you, Dr. Rajashree. I'll really apologize.
तो हम सबको एहसास हो गया है that the right way is to the natural way, and Yeah. what better than Ayurveda. तो सबसे पहले 5 महीने से जो हंगामा हो गया है, हंगामा इसलिए क्योंकि हम सब में थोड़ा सा डर भी है और मिक्स फीलिंग है, अपना केयर करते हैं फिर भी डर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो बहुत कर दीजिए कि किस तरह से थ्रू आयुर्वेदा हम अपने घर में अपना केयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा की, और क्योंकि हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड एंजाइटी डिप्रेशन, तो अगर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँ कि हेल्थ को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो हजारों साल पहले जब आचार्य सुश्रुत आए, ही रिटन अ बुक एज सुश्रुत संहिता, जिसकी सारे के सारे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने हेल्थ निश्चित सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, तो ये है आयुर्वेद की स्वास्थ्य की परिभाषा। और अगर हम इसे मॉडर्न में बोलें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. Our mind is not steady, तो कोई हेल्थ नहीं कहला सकता। तो क्या है कि हम आयुर्वेद भी देखें और मॉडर्न भी देखें, तो इन दोनों का बॉडी का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन, हमारा रहना सहना, और अगर हमारा ब्रेन सब कुछ काम है, सब कुछ ठीक है, देन वी आर हेल्दी। अब है क्या, सभी को पता है कि कोविड पेंडेमिक सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या है, लोगों की जॉब जा रही है, कैसे छोटे पर्सन को देखिए, एक मेड से शुरू करते हैं और एक बड़े सेलिब्रिटी तक चलते हैं, सबके सब एक ही पैमाने में सबके सब करना है। तो हमें करना क्या, सबसे पहले अपने माइंड को काम करना बहुत जरूरी है, और ये देखना जरूरी है कि स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी कहाँ से हो रहा है। हमें अपने आप को इतना काम डाउन रखना है, अपने आप को इंडल्ज करना है, शेड्यूलिंग करना है कि हम लोग अपने अच्छा शेड्यूल के पास, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। अगर किसी की लाइफ में राइट शेड्यूलिंग नहीं है तो स्ट्रेस को ओवरकम करेगा ही करेगा। अब उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमें अपने न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान रखना है। अगर हम अच्छा खा रहे हैं, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, जैसा खाए मन, जैसा खाए अन्न, वैसा बने खाना। तो अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड ना खाकर कुक करके खा, मतलब अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, जब एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो ब्रेन बूस्टर्स का काम करेगा, और वो अच्छा, मतलब हम प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो स्ट्रेस की ये मैनेज करने का ये तरीका, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब ज्यादा बहुत जरूरी है। आपको फिट है, आप सब फिटनेस हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जो लोग एक शेड्यूलिंग नहीं रखते, लेट नाइट जागना, लेट अर्ली मॉर्निंग, जो रेट होता है वो ऑलरेडी स्लो हो जाता है। जब कोई चीज स्लो हो गई, हमारी बॉडी की मशीन ही स्लो हो गई है, तो हम कर क्या सकते हैं, तो हमें स्ट्रेस ओवरकम करेगा। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप रूल आउट करें कि आपको कौन कौन सी ऐसे स्ट्रेसर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी अननोइंग चीजें हैं, तो आपको कौन कौन सी चीजें जो अनसर्टेन होते हैं। देयर आर टू थिंग्स इन लाइफ, सर्टेनिटी, अनसर्टेन। अगर कोई चीज सर्टेन है तो हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ इज अबाउट अनसर्टेनिटी। अब कोविड इज आल्सो अनसर्टेन सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई हर जगह डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या उन अनसर्टेनिटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। लेकिन आस्क टू क्वेश्चंस टू अस, लाइक इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर, डू वी हैव एनी सॉल्यूशन फॉर, यस, देन व्हाई टू वरी। सेकंड क्वेश्चन इज दैट, इज आई हैव अ प्रॉब्लम, यस, कैन आई डू समथिंग फॉर इट, नो, then why to worry। जिस चीज का सिचुएशन ही नहीं है, तो हमें कभी कभी उस सिचुएशन अपने आप को, जिसे कहते हैं हैबिटेंट बन जाना चाहिए अपने। तो अगर आज कोविड पेंडेमिक आया है और वो स्ट्रेस आए हैं, तो स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कीजिए, तो उसमें से ये देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोगों की जॉब जा रही है, कई पेशेंट आते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम डाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि स्ट्रेस है, वो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर काम कर, किसी को आईज में पेन है, किसी को हमेशा अपना छोटी टेंशन रहता है, मुझे तो थोड़ा भी लग रहा है, मुझे सोच होता है, मुझे कोविड हो गया, अगर कोविड हो गया मुझे क्या, या उनका डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप ये देखिए, आपको कौन सी ऐसी बात अवॉइड करते और कैन डू फॉर, क्या कर सकते हैं ऑप्शन। डॉक्टर राशि, थैंक यू सो मच, आपने तो हमें बताया, लेकिन नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशंस टू हम क्या-क्या चीजें खाने में हम देख सकते हैं, क्योंकि मेंटल फिटनेस इज नॉट इजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट इजी। वो बेसिकली बहुत हमारे हाथ में नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं वी आर व्हाट वी ईट, वी आर व्हाट आवर डाइजेशन सिस्टम इज। तो हम क्या खा सकते हैं जिससे हम मेंटली भी काम हो और फिजिकली बहुत एक्टिव। सो प्लीज यू कैन हेल्प अस विद दैट। आयुर्वेदिक फूड्स में कौन से खा सकते हैं, किस तरह से मॉर्निंग की शुरुआत करें और शाम को एंड करने से पहले हमारा जो दिन एंड होता है, प्लीज हमें बताइए किस तरह से। सिमरन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि हम
आपको बताऊंगी कि कैसे खाना है। तो शुरुआत मॉर्निंग में उठने से। सबसे पहले तो हमें उठना उस टाइम पे चाहिए जैसे सूरज उगने से हम 1 घंटा पहले उठ जाएं। अगर हम सूरज उगने से 1 घंटा पहले से 4, 4:30, 5, 5:30 नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट उस टाइम पे उठे जब सनराइज हो रहा है। उस टाइम में क्या होता है, हमारे जो ट्राइपॉड, जैसे मैंने पहले आपको प्रदोषास के बारे में बताया, वो एकदम अपने पीक पे होते हैं, इक्विलिब्रियम उस टाइम मेंटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, जो हमें आयुर्वेद की दिनचर्या में बताया गया, उषा पान। उषा पान इसका मतलब है अर्ली मॉर्निंग जो हम खाली पेट पानी पीते हैं। तो आपको उतना पानी पीना है कि जितना आपका पेट हो जाए, तन जाए जिसे कहते हैं। इससे क्या होगा, वो आप और कैसा पानी पीजिए, अगर ठंडी का मौसम है तो ल्यूकवार्म पानी पी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए। कॉपर के बर्तन रखा हुआ पानी है तो बहुत अच्छा पानी है। कई लोग ये हो जाता है तो एक बार में एक बार पानी नहीं पी सकते, तो इतना अमाउंट हमें चाहिए, मिनिमम 1 ग्लास तो मैक्सिमम आप 1.5 ग्लास तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अगर 4 ग्लास पानी पीता है तो बॉवल मूवमेंट क्लियर हो जाती है। और क्या होता है, आपने ब्रश नहीं की, बैक्टीरियल एक्टिविटी का काम करते हैं हमारी बॉडी में जाके, जो कि हमारे अंदर एक वैक्सीनेशन का काम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आपने पानी का आपका बॉवल, अब जो भी आपका या फिर आप वॉक करने चाहिए। खाली पेट जो लोग चाय पीते हैं, किसी को चाय, कॉफी, ग्रीन टी पीने की हैबिट होती है, तो आप चाय, कॉफी को किसी को कैफीन मिलता है, निकोटीन मिलता है, वो लेने से अच्छा है कि तुलसी, जिंजर का चाय पी लें। मार्केट में बहुत तरीके के जैस्मिन ना प्रॉब्लम वो नॉर्मल कोई जॉग कर सकते हैं, इतना जॉग करे जितना कि उसकी मसल का प्रेशर आए। कुछ लोग जिम करते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि आप एक बंद सराउंडिंग में एसी ऑन करके जिम किया जाता है, लेकिन अगर हम अपने पुराने आयुर्वेदाचार्यों को देखा जाए या ऋषि मुनि या एंशिएंट पीपल को देखें, वो खुले में बैठ के प्राणायाम करते थे, यौगिक। इसके पीछे भी एक रीजन है। अब होता क्या, एयर कंडीशन आपको, यानी एयर की कंडीशनिंग चेंज कर रहा है। दूसरा तो आप एयर के टेम्परेचर को आप अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। कई लोग जी 18 डिग्री पे अच्छा लगता है, किसी को 27 पे, किसी को 24 पे। इतना जो सुबह सुबह जो पेट और जो देते हैं वो हार्ट के थ्रू, तो उसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। चलिए आप वॉक करके आ गए। अब बात आती है कि हम नहा धो, कभी भी नाश्ता कोशिश यही करनी चाहिए कि बिना नहाए आप ना करें, क्योंकि कई लोगों को मैंने ये देखा है, कईयों के साथ ये होता है, वो खाना खा लेते हैं, नाश्ता करते फिर नहाने जाते हैं। दैट इज अ वेरी बैड। होता क्या है, व्हेनेवर वी ईट, अगर हम मॉडर्न जमाने की बात करें, एलोपैथिक की बात करें, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो डाइजेशन को पूरा करते हैं प्रोसेस। अगर हम एसिड की बात करें तो उस दौरान हमारे शरीर में पित्त निकलता है, पाचक पित्त। दैट मीन्स कि वो एंजाइम्स है और जो पचाने का काम, यानी अग्नि सारी हमारे जठर में, यानी हमारे स्टमक के सेंटर पे चली जाती है और वो पचाने चला गया। तो क्या होगा, आप भरी आग के बर्तन के ऊपर पानी डाल देंगे तो नेचुरली जितना फ्यूल डाला है वो जलेगा नहीं, टॉक्सिन्स बनेंगे, काला धुआं निकलेगा जिसमें आंसू आएंगे। सेम प्रोसेस वो हमारी बॉडी के, हमारे टमी के अंदर होगा। जब हमने नाश्ता किया और हम नहाने चले गए तो होगा क्या कि हमारे टॉक्सिन्स बनेंगे, जैसे डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो अगर हमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमें वीकनेस आएगी, नेचुरल सी बात है। तो क्या करना है, वॉक करके आए, उषा पान किया, वॉक किया, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग से 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच बीच में आप वो बहुत अच्छा टाइम। घर में लेडीज के साथ देखा जाता है, लेडीज भाग के सारे बच्चों को भेज दिया, करते करते वो 11-12 बजा देती। दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर आप सब फैमिली में बैठ के ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद लंच और ब्रेकफास्ट बीच में आपका एक मिड मील होना चाहिए। मिड मील क्या करेगा, वो एक छोटी सी फ्यूलिंग का काम करेगा, एक पल्सेटाइल मोमेंट का काम करेगा। उसमें आप लेमन वाटर ले सकते हैं, जिनको वाटर रिटेंशन का बहुत प्रॉब्लम है, वो लेमन वाटर ना ले, वो कोकोनट वाटर ले सकते हैं। और आप ब्लांच किया हुआ एप्पल, ब्लांच सम पीपल कि वो कच्चे फ्रूट जब खाते हैं, कच्चे क्रंची फ्रूट, तो दे फील गैस। तो कई टाइम्स का मेरा ये होता है, खाने से हमें गैस, तो अगर उनको आता है कुकुम्बर खाने से, तो आप ब्लांचिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे आपने वाटर बॉईल किया और जब बॉईल हो गया गैस ऑफ करके अपना डाला, 50 सेकंड हिलाया और काली और चिलिंग वाटर एक नॉर्मल टैप, उसको आपने खाया तो आपको गैस नहीं बनती और उस टाइप पे आपको एक कूलिंग का काम करेगा। तो आपका क्या है, आपने एक अच्छा हेल्दी रिच बैलेंस डाइट वाला ब्रेकफास्ट किया, फिर आपने मील किया और उसके बाद आप लंच। अब आप
कि जितना भी आपके खाने का पोर्शन, जितना भी आपने ब्रेकफास्ट खाया है, उससे थोड़ा सा लाइट ही आपका लंच। अब लंच में क्या आप अच्छा प्रोटीन, कि कार्बोहाइड्रेट कर, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, तो आप कलरफुल वेजिटेबल्स लीजिए, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ बेल पेपर्स आर देयर, ठीक है, आप स्पिनच ले सकते हैं, आप रफेज ऐड करना पड़ता है, तो बहुत तेज आंच पे खाना कुक करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप तो स्लो आंच में, और वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन मस्टर्ड ऑयल, वर्जिन आपका ऑलिव ऑयल हो गया, या क्रोटन ऑयल, आप ये सब चीजें, रिफाइंड से तो बिल्कुल बचिए। और आप मार्केट में देखेंगे देयर इज अ ट्रेंड सिमरन कि मुझे घी नहीं खाना, उन्होंने बोला है माना है कि काउ घी, स्पेशली काउ वेरी नेसेसरी। तो जब भी आप अपनी दाल खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, तो ये नहीं कह रही हर चीज में डालें, लेकिन आप थोड़ी सी रोटी को ग्रीस करना है, आपको अपने दाल के अंदर डालना है और खाना है। साथ में सैलेड्स होना बहुत जरूरी है। सैलेड क्या करेंगे, कई बार क्या होता है, दाल भुली हुई है, दाल उसमें कोई फाइबर आ रहा है, कभी कभी हम सब्जी भी ऐसी डालते हैं, कईयों को हैबिट होती है कि वो आलू की सब्जी नहीं बनती, तो आप अवॉइड कीजिए कि हर सब्जी में आपको आलू डालने की जरूरत नहीं है। आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको, जिसे हम हरे साग कहते हैं, हरे पत्ते वाले सागों को, पालक हो गया, चौलाई हो गई, और भी बहुत सारे सेलेरी हो गई, ये तो रही बेबीज के साथ, क्योंकि दिन भर काम करके वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि पानी पीने का टाइम नहीं है, अभी हमें पानी पीना, तो खाना खाने अवॉइड करना है पानी पीना। होता है किसी के साथ कि वो उनको हिचकी या रेक्टिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप एक बीच में जैसे 1 ग्लास फुल या 2 ग्लास ऐसा पानी नहीं पीना, आप खाना खा लीजिए, 45 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। अभी क्या है कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो क्या है, ल्यूकवार्म वाटर पीने के सब कहते हैं, तो मैं ये करूंगी कि जब मैंने खाना खाया, पानी पिया, उसके को भी जो सूट करती है, क्योंकि हर एक चीज सबको सूट नहीं करती। द ट्रेंड इन मार्केट एवरीबॉडी इज गोइंग टुवर्ड ग्रीन टी, आई आल्सो वांट टू, हूसोएवर इज वेट कॉन्शियस को तो लगता है मैडम मैं ग्रीन टी, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ग्रीन टी इज, बॉडी को कौन सा ग्रीन टी या कौन सी लेमन टी, व्हाटएवर सिनेमन टी सूट कर रही है। जब आपने ये काम कर लिया, ऐसा लंच के बाद, लंच टाइमिंग आपका 12 बजे से 2 बजे का बीच, इसके बाद में अगर आप लंच करते हैं तो वो डाइजेस्टिव, बहुत गर्मियों का मौसम है आयुर्वेद के हिसाब से, तो आप 1 घंटे की नींद, लेकिन अगर समर नहीं है, गर्मियों का मौसम नहीं है, तो चाहे बरसात है, तब त्याज मतलब अवॉइडेबल है, आपको अवॉइड कीजिए, इनमें आप बिल्कुल करिए। उसके बाद शाम को आप एक हल्का सा स्नैक ले सकते हैं, जैसे मुरमुरा भेल हो गया, सोयाबीन पफ्स आते हैं, रोस्टेड पीनट, बहुत सारा डाइट से रिलेटेड बहुत सारे मार्केट में, वो हम ले सकते हैं। और डिनर कोशिश कीजिए, जैसे बर्ड्स फॉलो करते हैं ना, सनसेट होते हुए तो अपना दाना और अपने भोजन, मैं ये नहीं कहती कि हमें बिल्कुल नहीं कोई फॉलो करना है, लेके डिनर कर लिया, अगर आप नहीं कर सकते तो आप 8 बजे तक डिनर कीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिए। बट अब आज का ट्रेंड, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हस्बैंड बाहर से आ रहे हैं, मैं बाहर से आ रहा हूँ, आप शूट से आ रहे हैं, जसमीत कुछ और करके आ रही है, तो हम लोग लेट आते हैं, तो क्या है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा डिनर बहुत ज्यादा हैवी ना हो, और डिनर को हम बहुत ज्यादा रिच, ब्रेकफास्ट बहुत, लंच उससे और डिनर थोड़ा सा लाइट, तो डिनर क्या कर सकते हैं हम, खूब सारी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सॉटेड वेजिटेबल, आपको ये सब खाते हैं, उसके बाद आप रोटी खाते हैं, आप बेसन चीला खाते हैं, मतलब यू कैन डू इनोवेशन। मैं प्रेफर करती हूँ, अगर अपनी बात करूँ, आजकल बाहर नहीं जा सकते, तो मैट्स है ना, जो थोड़ा ग्रासी मैट्स होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पैरों पे एक्यूप्रेशर होता है, खुद के ऊपर, जैसे हमारा ये हाथ है, ऐसे ही वो एक्यूप्रेशर होता है, वो डाइजेशन में भी करता है और रिलैक्स भी करता है। खाने के तुरंत बाद स्क्रीन देखना, जैसे टीवी देख लिया या मोबाइल देख लिया, ये क्या होता है, हमारे को दूसरी साइड पे लगता है, और उस टाइम डाइजेशन नहीं हो पाता, तो चलो काम है, मेल्स करनी है, आप वो भी कीजिए, लेकिन आप सोइए मत। खाना खाकर तुरंत बेड पे जाना मतलब बीमारियों को निमंत्रण देना, तो खाना खाकर आपको कभी भी सोने नहीं जाना। आप कोशिश कीजिए कि आप तो बायोग्राफी पढ़ लीजिए, नहीं तो किसी ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ लीजिए जिसको आप फॉलो करते हैं, या कुछ ऐसा पढ़ लीजिए, बच्चों को स्टोरी सुना सकते हैं, अपने आप को इंडल्ज करते हैं। बट खाना खाने के डिनर कर रहा है तो कोशिश करें कि वो 2 घंटे उसमें प्लस कर ले, तब जाकर सोए। दिस इज द शेड्यूल
फुल ऑफ होल डे। और इन बिटवीन जैसे हमने सुबह वॉक का किया था, तो शाम को हम प्राणायाम भी ऐड कर सकते हैं, तो जिम करने की हैबिट है वो जिम भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर उस टाइम बहुत हैवी ना खाया हुआ। डॉक्टर राजश्री सिंह, आपने इतने सुंदर तरीके से 10 मिनट में जो परफेक्ट हेल्थ हम जिसे कहते हैं, आपने सभी को समझाया। सो मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार थैंक यू सो मच। कि अगर कोई भी आपका 1% भी फॉलो करता है ना, आपने हर एक चीज कवर की है, ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर, सुबह पानी से लेके रात तक। सो एब्सोल्युटली सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मेरे ख्याल से अब किसी के पास भी और प्रश्न नहीं होने चाहिए ऑन हेल्थ सिस्टम, और इतने सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हमने रात को कहा सुबह में हम पानी पीते हैं, शुरू करते हैं, रात को खाने के और सोने के बीच में 2 घंटे होने चाहिए, तो क्या रात को पानी पीकर सोना चाहिए, जो 2 आवर्स का गैप होता है और हम सोते हैं? देखिए इसमें ना 2 थ्योरीज चलती हैं। किसी किसी के साथ क्या होता है, डायबिटिक पर्सन की अगर हम बात करें तो उनको क्या होता है, अगर वो रात को पानी पी के सोते हैं, डिपेंड्स कंडीशन टू कंडीशन। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं, आपको जागना, खाना खाया, खाना खाने के बाद वही रूल फॉलो करना है कि आपको आधे घंटे बाद ही पानी पीना है, लेकिन अब उतना पानी नहीं पीना है कि 2-4 ग्लास का, कि पूरी एक ह्यूमन बॉडी का अगर मैं रेशो, तो हमें तो अपना पानी पीने की शेड्यूलिंग है ना, तो दिन में ऐसे करनी चाहिए कि 10 ग्लास तक का पानी या फिर 12 ग्लास का पानी आप इवनिंग होते होते फिनिश करें। और फिर खाना खाने के बाद जैसे आधे घंटे बाद आपने 1 ग्लास पी लिया, क्योंकि कईयों को दूध पीने की भी हैबिट है, तो वो जो दूध जा रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड। अब डायबिटिक पर्सन अगर रात को पानी पी के सोएगा, तो डायबिटिक पर्सन का क्या होता है, उन्हें बार बार लू जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, तो उनके लिए अवॉइड कर सकते हैं, या छोटे बच्चे हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन फेस फॉर बेड। लेकिन जो एक अडल्ट हेल्दी बंदा है, वो ल्यूकवार्म वाटर, ठंडा पी, आप ल्यूकवार्म वाटर पीके तो आपको एक अच्छी हेल्दी स्लीप भी आएगी और वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। और ठंडा पानी, क्योंकि उसको हम रॉ वाटर कह सकते हैं, तो वो डाइजेशन को खराब करता है, इसलिए सोने से तुरंत पहले वाटर अवॉइड करना है। डॉक्टर राजश्री, अब जो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके सिम्टम्स किस तरह हैं? क्योंकि हमने तो देखा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जिन्हें स्ट्रेस एंजाइटी जैसी फीलिंग्स है और जिन्हें फियर है, अगर हम ये आपका रूटीन कंप्लीटली फॉलो करें, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, आज के बहुत इजी है, लेकिन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ? ऐसे कोई सिम्टम्स हमें पता चलता है, जैसे पसीना निकले? देखिए हम सिम्टम्स को ना 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता चलता है जैसे पसीना निकले। देखिए हम सिम्टम्स को ना 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स हो गए, आपके बिहेवियर सिम्टम्स हो गए, और फिजिकल सिम्टम्स हो गए। तो कॉग्निटिव की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल आती है। हम एक ही, जो भी आप देखेंगे, कोई एक ऐसा पर्सन होगा हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे नोन में, वो एक ही बात रिपीट करता रहेगा, एक ही बात को सोचता रहेगा, उसका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसकी मतलब हेलो, इशू आ जाएगा। कई लोग आप देखना, उनको कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी उनको लूज मोशंस हो जाएंगी, कभी उनको किसी सॉरी टू इंटरप्ट, ऐसी चीज sorry to interrupt, we have to wind up थोड़ा सा जल्दी. Dr. Kajal is also waiting. So Simran, you should continue with Dr. Kajal now. Okay. Okay, I was thinking, so because you told me, you know, that anyways, I have finished with for almost. सिर्फ एक लास्ट इनसे पूछना था, कुछ कहना चाहते हैं. So can we rather do tomorrow? I can introduce her if you want, and you can carry on with the questions, because I have my जो 110 days से मेरा regular live yoga जा रहा है. Just 10 minutes. Just 10 minutes. Dr. Kajal is also there online, so we have to ask her. Okay, let's do that. Dr. Kajal, can you hear us? Dr. Kajal, hello. Let me thank Dr. Rajshri first, yeah. Can you hear me? Yes, Dr. Kajal, but it is very soft. I can't hear you clear. Now it is better. Better? Yes, you are. Just give me 1 second. Thank you very much, Dr. Rajshri. I have no words to express my gratitude. बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरा हेल्थ समझाने के लिए. वेल दोस्तों, हमारे साथ आज हैं डॉक्टर काजल प्रसाद, a woman of indomitable software engineering by quality after experience surviving 2 cancers, then a losing mother, brother,
and many of external family members with cancer. It is a journey of faith and hope of finding the actual purpose and meaning of her life. During this journey, she entered the world of spiritual healing, tarot card reading, Reiki healing, and she trained herself in Reiki and became a Reiki grandmaster healer and past life regressionist to the inside and counsel to energizing a tremendous healing power from her own hands. By manifesting her is absolutely ongoing. She's been recognized and her profile is pretty long. We are extremely honored to have you here with us. May we please welcome Dr. Kajal Prasad, and once again, I'm going to thank Dr. Rajshri Singh for the great inputs जो आपने हमें दिए हैं. And welcome Dr. Kajal. Dr. Kajal, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप? Thank you so much, Simran. I met you in one award function. मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन मुझे पता नहीं शायद दूसरों को आपकी आवाज आ रही, तो भी वो है. Are you better now? Yeah, but Yeah, not little bit you. better. Yeah, but your voice is not that Dr. Kajal, मैं आपसे पहले अच्छा आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं, I can hear you, but for the system it will not pick up that well. Just can you hear her clearly? So ठीक है, so let's continue. No, can you hear her? No, I'm not able to hear her. No. Can you hear her just? Yeah, I can hear you very clearly, but I'm not able to hear Dr. Kajal. Dr. Kajal. No, I'm not able to hear her. That's the problem. Yeah, so I think you get that sorted out, sweetheart. Dr. Kajal, मैं आपको सुन पा रही हूँ धीमे से, but the system has to pick up your sound, so we'll wait for Just to tell us. Yeah, hi Simran. I'm able to hear. Are you able to hear? Yeah, I'm able to hear. Just can you hear? It's better than earlier. पहले से better है. Yes, much better. I met you in award function. Thank you. Thank you. Dr. Kajal, please कहना चाहूँगी that you are completely magnificent. किस तरह से आप जो कहते हैं ना एक absolutely energy और strong lady होते हैं, वो आप हैं. So truly an honor to really welcome you here on behalf of BU Care. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. So please tell us more about entire fitness, health and stress arena. As you know that I am a cancer survivor and I take care of cancer patients. Not even when I am suffering from cancer from like many years, but still it is very difficult for me to even follow certain things. I don't have kidney, so I also still now I have a relapse thinking that it will come back. So mental stress and mental health is very important for anybody who has gone through some kind of illness. So whenever we talk about routines and when we talk about the right food and everything, it is important for patients more, but they are very moody and cancer patients especially, I would say, they react in a very different way. Sure. So how to deal with cancer patients or any other chronic illness patients or this COVID time, because a lot of financial losses are there and we are not able to maintain the proper routine, a health routine or fitness routine. So important is to motivate ourselves. It's like we have to motivate ourselves. Nobody is going to come from outside to tell us daily that you can do it. So inner strength is very important. Trusting yourself is very important. And what I follow myself is ki whatever the situation is, whatever the things is, I always get up in the morning and get ready. So because when you see yourself in mirror, you feel good. And if you feel good, you will feel that confidence inside. Because with, I would say, cancer patient or any illness, the person who is going through any illness, the most difficult thing is to face themselves in mirror. Without hair or scars and you are not going out. And coping with social pressure of a work or your careers or professions, important is to tell yourself daily. What I practice, I usually tell everybody to practice is stand in front of mirror for at least 5 minutes or 10 minutes and give positive affirmation. That I am beautiful, I can do it, I am good. This is just a phase, it will go. This is not permanent. And the person who is in a deep depression, I ask them to write. Even today, I write that affirmations for myself. That I am beautiful, I am healthy, my kidney is doing perfectly, my kidney is
cooperating with my body so much. My liver is doing good. So I send lot of love to my heart. I send lot of love to my kidney. Uh, See, our brain is basically a transmitter, or I would say supplier of emotions to the body. So our brain tells us how we feel. There is a simple example. On Sundays or in any off days, our body start getting lazy. Whereas in Monday, Tuesday, and other working days, our body is like, wow, moving very fast. So our brain tells our body how to react. So if we train our brain, if we master our brain, I think half of the problems, I think we can overcome it. This is how I deal with my life. And I don't focus on things which is not right. My kidney is not there, my liver is not there, my heart is not functioning. It will never come back. Even if I think about it 24 hours, it will never come back. So instead of thinking about that, I can think about the other kidney I have. The 50% heart, my heart is working. Or the skin I get, the hair I get. So shifting of focus is very important. For the mental health, this time is very important to fix your focus to the which is good in your life. And for the family, it is very important to monitor if somebody is going low or not getting up from the bed or not doing the daily activities that person normally used to do. Just push the person, talk positive about it. Not like कि अच्छा कोविड आ गया तुम्हारी जॉब का क्या होगा, तुम्हारे प्रोफेशन का क्या होगा. So don't talk about problems. Talk about the good things in life. So this is how I live, and this is how I tell everybody to, I think, come out of these situations now. Thank you, Dr. Kajal. This was, especially the positive affirmations, and every single thing you spoke was very, very apt and true. Please excuse me, I have to leave. Thank you so much. God bless. We definitely connect again with Brilliance in You with Jazz. Jazz, thanks. Lots of love to you, sweetheart. Thank you so much. Thank Thanks you a lot, so much, sweetheart. Simran, for your valuable time. And thank you so much. I've sent you that last bit. Yeah. Thank you, sweetheart. Absolutely my pleasure. I'll be really relaxed because the viral singer grand finale is going at 7 p.m., which I'm already done with. So I was busy with that show because the grand finale. Bye. Bye. Bye, darling. Bye. Yourself in this time of anxiety. How to train our mind is the most important and most difficult thing, because in our lives the devil thing in our life is our brain. Very true. प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है जितना दिमाग उसको कर देता है. Exactly. सर में दर्द, अभी आप बहुत सारी सिचुएशंस देखोगे. एक इंसान, मैं कैंसर 2 सर्वाइव करके आई एम डूइंग वेरी वेल इन लाइफ. प्रोफेशनली आई एम डूइंग वेरी वेल. घर का भी आई थिंक जब से कोविड है आई एम डूइंग एवरीथिंग एट होम. मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनकी शायद बेसिक इश्यूज होते हैं, हेडेक है. मैं ये नहीं कह रही वो कम होते हैं मे बी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस होता है एक्सेप्टेंस का. आज मुझसे नहीं उठा जाएगा, आज मेरे सर में दर्द हो रही है. द मोमेंट यू थिंक अबाउट इट कि मुझसे नहीं हुआ जाएगा, कोई चीज़ आपसे नहीं करा सकती, कोई नहीं करा सकता आपसे. और वही इंसान जो अभी नहीं उठ रहा था, कल को कोई और इशू आ जाएगा, उसका अपना फैमिली का कुछ इशू आ जाएगा, दैट पर्सन विल डू एवरीथिंग. ठीक है, आपसे अभी 5 मिनट पहले नहीं उठा जा रहा था और 10 मिनट में मेरे कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं जो रीलैप्स हो जाएगा, उनका चलता रहता है. लेकिन जिस दिन उनकी रिपोर्ट आनी होती है दे आर वेरी लो, और जैसे वो रिपोर्ट अच्छी आती है दे गेट ऑल द गुड एनर्जीज, वो खुश भी होते हैं, सब काम भी शुरू कर देते हैं. तो चेंज हेल्थ अगर देखी जाए तो हेल्थ तो उनकी वही है जो रिपोर्ट आने से पहले भी थी. तो 5 मिनट में क्या चेंज हुआ? मेंटल स्टेट, माइंडसेट चेंज हुआ. सो दैट मीन्स हमारा बॉडी जितना चलता अच्छी खाने से, अच्छी एक्सरसाइज से है, हमारे माइंड से भी उससे कहीं ज़्यादा चलता है. सो जब हम नॉर्मल लाइफ में देखें, लोग व्रत करते हैं तो 9 दिन सिर्फ सात्विक भोजन खाते हैं. और नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोगों को दोपहर का लंच नहीं मिले तो हम शाम तक शोर मचा देते हैं, आज मैंने लंच नहीं किया. सो डिफरेंस इज ऑल हियर. So when you train your brain and
where you tell your brain ki please shut up, this is what I have to do and this is important. Your body will start doing it in a exactly same way. So आना क्या चाहिए आपके अपने दिमाग को, जब वो शोर मचाता है उसको कंट्रोल में रखना. और वो कंट्रोल में कैसे होता है, जब आप आपका लाइफ पैटर्न आप बैलेंस रखते हैं. आपने क्या करना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है लाइफ में, इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में, और क्या चीज़ आपको करनी है क्या नहीं करनी है. तो आपका एक मेमोरेंडम से तैयार होता है कि हमारा डेली रूटीन कैसा जाएगा या हमारी चीज़ें कैसी जाएंगी. सो जो लोग मैंने बहुत सक्सेसफुल जो लोग देखे हैं, दे ऑलवेज मेंटेन अ डेली रूटीन, Scheduling. go with scheduling, and they go with it. So you're planning and you're telling your brain, and mastering your brain is equally important as eating good and exercises. I'm a marathon runner. I run marathons, 5 kilometers run I do. With my kidney issue, with my liver issue, with my heart issue, I do it. So I think brain plays a very important role in life. So, due to this COVID situation, many people are suffering from suicidal thoughts. मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन स्ट्रेस में रह रहे कि सुसाइड करने का बहुत ज़्यादा थॉट आ रहा है. तो इसमें फैमिली और फ्रेंड्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल को अगर ये थॉट्स आ रहे हैं वो कैसे ओवरकम करे इस सिचुएशन से. हेलो. Difficult time. Hello, can you hear me? Jaspreet, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. Why the suicidal tendency have increased now? Because इस COVID-19 से पहले everything was very fancy, everything was very technical, everything was very I would say out, parties, pubs, friends. So वो एक limited resources में रहना लोग भूल गए थे. So जब आप एक एक्सपेंशन से आप एक नॉर्मल सिचुएशन में आते हो, एक गुब्बारा है आपने फुला दिया, और जब उसको आप उसकी हवा निकालोगे तो उसमें रिंकल्स पड़ जाएंगे. दिस हैपन टू पीपल्स लाइफ. बहुत कुछ कर रहे थे, अचानक से सब चीज़ें ख़त्म हो गई और उन्हें लगा लाइफ ख़त्म हो गई. आज पार्टी नहीं कर रहे, आज बाहर नहीं जा रहे, लोगों से नहीं मिल रहे. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की सोसाइटी का है अकेलापन, लोनलीनेस. फैमिली में बच्चे किसी से बात करते नहीं हैं, बड़े किसी से बात करते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते नहीं हैं. कुछ गिने चुने फ्रेंड्स हैं या फिर आपका वर्चुअल वर्ल्ड है. और जब ये सब बंद हुआ तो आप रियलिटी में आए अपनी, और आपको सब चीज़ों से घबराहट होने लगी कि आपके पेरेंट्स को पता ही नहीं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. तो आपको जब कोई बात करने के लिए नहीं मिला, जब आपको कोई कंफर्ट करने के लिए मिला, आप सांस लेने के लिए बाहर नहीं जाने लगे, तो आपको लगा इससे बेटर है कि लाइफ ख़त्म कर दो. बट दिस इज़ नॉट राइट. आपकी फैमिली है. और दूसरी चीज़ ये तो, इफ़ आई एम 45 और मैं 44 ईयर्स एक बाहर की दुनिया में रही हूँ, तो एक साल घर के अंदर अपनी फैमिली में रह लोगे और थोड़ा कम चीज़ में गुजारा कर लोगे, तो आगे 20, 30, 40 साल और रह लोगे. सो वाई टू एंड दिस प्रेशियस लाइफ, जिसके लिए आपने इतनी पढ़ाई की, इतना स्ट्रगल किया, इतने धक्के खाए, एक साल थोड़ा और खींच लो. राइट. एंड बिल्कुल अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. जो भी सिचुएशन हो जाए आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है. यही लाइफ है. यही लाइफ है. आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सैलरीज कम हो गई हैं, तो आपके एक्सपेंसेस भी तो कम हो गए. आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच गए, आपके पार्टी के एक्सपेंसेस बच गए. तो अगर आपकी सैलरीज कम हुई हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं. आप सिर्फ सैलरी कम क्यों देख रहे हो? आप एक्सपेंसेस भी तो देखो, आपके एक्सपेंसेस भी तो कम हुए हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि इस सिचुएशन में मोटिवेटेड कैसे रहना है. जैसे कोरोना तो अभी भी है, बट लॉकडाउन खुल गया है, बट प्रिकॉशंस तो हमें अभी भी लेनी है. तो कैसे खुद को रोज मोटिवेट रखें कि हम पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में. शेड्यूलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को इतना टाइम मत दो लाइफ में या इन दिनों में कि आपका ब्रेन आप पे कंट्रोल शुरू कर दे. यू हैव टू कीप योर सेल्फ बिजी एंड यू हैव टू डाइवर्टेड योर सेल्फ. टीवी देखना सबसे पहले तो कम कर देना चाहिए, स्पेशली न्यूज़. बिकॉज इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है जितनी हमें टीवी देख के घबराहट होती है. 7 लाख लोग केसेस हो गए, और वो 7 लाख पूरे
इंडिया में है और इतनी पॉपुलेशन में है। हमारी ज़रूरत हमारी लाइफ है, हमारी फैमिली की लाइफ है, वी शुड फोकस ऑन देम। उसको लेके स्ट्रेस, कौन सी कंपनीज में इतने एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, मेरे पास फ़ोन आते मैम उस कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉयज़ निकाल दिए। अरे भैया तुम्हारी कंपनी तो नहीं निकाले ना, सो व्हाई आर यू टेकिंग स्ट्रेस ऑफ अनदर कंपनी, दे विल टेक केयर ऑफ इट। सो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को मोटिवेट रखना। सबसे पहले अपनी लाइफ पे फोकस करो, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारी फैमिली के लिए क्या ज़रूरी है, और हम इस चीज़ में क्या अच्छा कर सकते हैं। राइट इट डेली, लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका रूटीन है, चाहे वो आपका शेड्यूल है, चाहे वो आपकी लाइफ के बहुत अच्छे। मैं हर किसी को स्टार्टिंग जब हीलिंग करती हूँ या सेशन स्टार्ट करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ अपने बारे में 10 अच्छी चीज़ें लिख के मुझे बताओ। एंड जसप्रीत यू वोंट बिलीव, और हर रोज़ 2 चीज़ें ऐड करनी है। जैसे फर्स्ट डे इट इज़ 10, सेकंड डे इट विल बी 12, थर्ड डे इट विल बी 14। यू वोंट बिलीव 6 दिन के बाद लोगों को अपने में कोई अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती। जितना आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे उतनी ही आपको मिलेगी, यही हमें सोच रखनी है अपनी। वो रोज़ सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, राइट। थैंक यू सो मच काजल काली मैम, आपने इतने अच्छे थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर राजेश्वरी, आपने अपनी बिजी शेड्यूल पे हमारे लिए टाइम निकाला। एंड Thank you so much. Pleasure is mine. it was a very interactive session और this was a very long session and thanks for your cooperation. आपने हमारा support किया after all this up and down, and keep supporting Brilliance in You, and I hope. Thank you so much. Always there. Thank you so much, ma'am. And to all the viewers, I would like to say that it was a very interactive session, and our speakers who are expert in their field had shared most important details जो आपकी लाइफ को और भी अच्छा बना सकते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स है वो कोविड के रिलेटेड हो, चाहे आपके डाउट्स हों, सेल्फ एम्पाथी के रिलेटेड, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक